Hello, everyone. Good evening. Welcome to the Author Sherry Show. My name is Author Sherry, and I work as a public speaking coach and TEDx speaker coach. And I'm on a mission to create 1 million public speakers in India by 2030. Ladies and gentlemen, as you know that in the Author Sherry Show, we invite the elite achievers, experts, and people who have done remarkably well in their careers. Today we have another special guest with you. He's on the screen live with all of us from his home in Delhi, and he is none other than a motivational guru. He does not require an introduction, but let me tell you, he is the man who has written 36. Yes, you heard me right. It's 3 and 6. He has written 36 books and worked with some of the top publishers in the country, and he has been inspiring. I would not say India. India would be a little small word here. He is inspiring the world. He has reached out to different countries. He has reached out to different media channels globally, and he has more than 500. I guess 500 is the list, but he's more than 1,000 awards. He's won thousands of awards, and he has done so much into the field of motivation, inspiring the youth, inspiring the countrymen, inspiring people out there, helping people, guiding them to overcome the problem of depression and anxiety. He's doing so much, and he is an expert graphologist. Those of you who don't know what is graphology, graphology is the science wherein when you sign, when you do the signatures, according to your signatures, your mental habits can be changed and which can help you transform in your life. So, without any further introduction and talking about more of this gentleman, let me invite and please help me welcome with a huge round of applause. Is none other than Jolly Uncle, Mr. JPS Jolly. Jolly Uncle, Sat Sri Akal. सत Welcome to श्री the अकाल show, सर। Author Sharing Show. It's a pleasure to have you here, sir. What an honor. थैंक यू शरी साहब। आज काफ़ी अरसे के बाद फिर मौका मिला। जब तक कोरोना नहीं था रेगुलर हम प्रोग्राम शोज इवेंट्स कर रहे थे, लेकिन हर दिन ज़िंदगी में एक नई जंग होती है और जब मॉर्निंग में उठते हैं तो पता नहीं होता कि किस दिन कौन सा चैलेंज हमारे सामने आएगा। लेकिन इस बार बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड ये चैलेंज आया। तो लेकिन मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप रुके नहीं, आपने अपनी जर्नी को रोका नहीं। जो 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स को आप तैयार करने का जो एक आपने मतलब कि वो शुरू किया है, तो उसके लिए आपने मीडियम चेंज कर लिया, लेकिन अपनी जर्नी को जो है वो कंटिन्यू रखा। तो मैं आपको सल्यूट करता हूं शहरी साहब। Thank you, sir. Thank you. I need your blessings. We will start with your favorite song. Sir, ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ. The audience who are watching us live. In fact, let me tell you that we want to congratulate you for reaching more than 50,000 followers on Facebook. That's a great achievement. Congratulations to Jolly Uncle. And ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। देखो, मैं सारे काम कर सकदा, गाना नहीं गा सकदा, क्योंकि एक बारी पब्लिक शो च मैनू किधरे प्रोग्राम ते गया सी, तो उत्थे मैनू उन्होंने कहा सी कि गाना सुना दिओ। वो मैं गाना सुनाया जिस तरह का भी मैनू आंदा सी। पब्लिक ने कहा जी वंस मोर। मैनू भी थोड़ी हिम्मत आई, हौसला आया। मैं दोबारा वो गाना फिर बोलिया। फिर उस तो बाद फिर पब्लिक होर जोर दी मतलब कि शोर कर रही सी कि वंस मोर। मैं उन्होंने थैंक्स किया कि मैं ऑलरेडी 3 बारी बोल चुका, होर इस तो ज़्यादा मैं गाना नहीं गा सकता। तुहानू पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते जी किन्ने कहा तुहाडा गाना पसंद आया? असी तो यह कह रहे हैं जब तक ठीक तरह गाना नहीं सुनाओगे तां तक असी तुहानू ध्यान नहीं देना। Oh, Jolly Uncle at its best. Hazir Jawabi, Hasna Khedna, Ais Umar H. Jolly Uncle, we salute you. For the kind of motivation, and most people don't know Jolly Uncle, except the fact that he's just written the books, except the fact that he's motivational guru, writer. Guys, I know Jolly Uncle very closely. I
got this honor to know Jolinkar very closely, and believe me, he is a gem of a person. And in fact, gem of a person would be a small word. I think he is one of the most inspiring people I know in my circle. And believe me, he walks the talk. He's someone who's always feeling motivated, not only because of his problems, to overcome his problems, but also he motivates others. When you call him, he will actually motivate you, guide you. What else you want? This is superlative stuff, Jolly Uncle. Jolly Uncle, आपका कोई फेवरेट कोट, कोई दो लाइनें जो आपका अपना लिखा हो, जो आपका सबसे ज्यादा फेवरेट हो? आपने बहुत कुछ लिखा है दुनिया के लिए. You have written 36 books, which is no joke. I think कोई और वर्ल्ड रिकॉर्ड रह गया आपके नाम तो वो भी कंप्लीट कर दो राइटिंग में. लेकिन एक अपनी कोई भी फेवरेट कोट जो आपको लगता है कि हाँ शेरी बेटा ये दो मेरी लाइनें बहुत मुझे अच्छी लगती हैं, वो आप प्लीज हमें बताओ. एक चीज मैं कहना चाहूंगा अपने सभी दोस्तों को, सुनने वालों को, कि पानी बिल्कुल ऑर्डिनरी जो होता है उसे हम बिल्कुल बेकार और सबसे कमजोर समझते हैं. लेकिन अगर उसको जब उबालते हैं और उसकी स्टीम बनती है तो वो 50-60 जो डिब्बों की गाड़ी है उसको खींच के ले जाता है. स्टीम इंजन में सिर्फ वो स्टीम होती है पानी की, वो ले जाती है. भगवान ने हमारे अंदर खून डाला है. एक बार अगर हम अपनी जिंदगी के उस खून को उबाल दें तो ऐसे ऐसे करिश्मे होंगे कि जो जिंदगी में हमने कभी नहीं सोचे. वो सारे करिश्मे हम कर सकते हैं उस खून को उबाल के. ओहो, क्या बात है. जिंदगी में कभी रोटी ठंडी खानी पड़े तो रोटी ठंडी खा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन जो जिंदगी का गोल बनाया है, जो जिंदगी में अचीव करना चाहते हो, उसके जोश, उसके जुनून, उसके जज्बे को कभी ठंडा मत होने देना. क्या बात है, क्या बात है. तो ये अगर छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनको अपना हिस्सा बना लें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं और से बाहर जाके मोटिवेशन लेने की जरूरत है. हमारे अंदर से इतनी स्पार्क, इतनी आग निकलेगी कि हम जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं. Superb, superb, Jolly Uncle. What a motivation. I'm sure people who are watching this interview live are already feeling inspired, on top of the world. And this is what Jolly Uncle is known for. Go and check out his name on Google. Type Jolly Uncle and you will come to know what this man has done for the country. He has done miraculous work. After the problems he has faced in life and the way he has overcome, I guess very few people in the country have achieved what he has achieved. So Jolly Uncle, to start with your inspirational journey, please tell us how this idea of writing the book came to your mind. And आपने ये जो 36 किताबें लिख दी हैं, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड, एक ट्रेंड सेट है. ऐसे एक ट्रेंड सेट हो जाता है, ये ट्रेंड आपने सेट कर दिया है कि 36 बुक लिखना, कि किसी को बताएं कि वो लगता है 1 मिनट के लिए सोचता है कि मेरे तो जैसे बोलते हैं दांत 32 तो दांत होते हैं, किताबें 36 लिख दी इन्होंने. तो मतलब एक अनइमेजिनेबल फिगर तक पहुंचना, ये बगैर पैशन के तो पॉसिबल है ही नहीं. तो ये तो साफ है कि आप बहुत पैशनेट है अपने फील्ड को लेके. ये 36 बुक्स लिखने का सफर आपका कैसा रहा, इसके बारे में आप सबको बताइए प्लीज. देखो, आज का जो दौर चल रहा है, आज जो टाइम चल रहा है, कल तक हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है तो समय के साथ चलो, तो आप तभी उसके साथ, बाकी लोगों के साथ मिलके चल पाओगे. फिर बीच में अब टाइम आ गया था कि अगर हमें अपने आप को लीडर प्रूव करना है, चाहे हम बिजनेस में हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, मोटिवेशन में है, ट्रेनिंग में है, बहुत सारे फील्ड हैं, किसी में भी हैं, लेकिन अगर अपने आप को नंबर 1 बनाना है तो हमें दूसरों से बहुत आगे चलने की जरूरत है. लेकिन अब जो दौर मैं देख रहा हूं, ये जो कोरोना के बाद आने वाला टाइम है, इसको मैं देख रहा हूं कि अब हमें अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस
और अपने दिमाग को बिजली की स्पीड से भी तेज चलाना होगा। क्योंकि जहां तक मैं एक्सपर्ट्स के व्यूज देख रहा हूं मीडिया में कि तकरीबन कहते हैं कि आधा वर्ल्ड जो है वो जॉबलेस हो जाएगा। लेकिन हमें अपनी जॉब की फिक्र नहीं करनी, हमें ये करना है कि हम खुद तो अपना घर, अपना जो भी इनकम सोर्सेज हैं, जो भी हमारे ऑफिस फैक्ट्रीज है, उसको अच्छे से संभालें, साथ में दूसरों की भी केयर कर सकें, दूसरों को भी 50 100 200 लोगों को हम अच्छे से रोजी रोटी दे सकें। तो उसके लिए हमें अपने दिमाग को बिजली की स्पीड से तेज चलाना होगा। तो ये मुझे लगता है कि अब ऐसी सोच हमें बनाने की जरूरत है। वंडरफुल सर, फैंटास्टिक, वेरी वेल सेड। और आई थिंक अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ये कोविड-19 के बारे में कर रहे हैं। और मुझे एक चीज आपके बारे में बड़े अच्छे से पता है कि आप जब कोई बात बोलते हो और जब आप कोई बात काम करते हो तो वो पैशनेटली फोकस के साथ करते हो। तो ये जो आपका किताब लिखने का सफर है, 36 जी बुक्स जी, जो आपने लिखी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये लिखने का जो सफर है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ये शुरुआत कैसे हुई, आपने पहली किताब कब लिखी, वो किस पब्लिशर ने पब्लिश करी, और आप ये 36 बुक्स, क्योंकि एक लेवल के बाद तो लाइफ में वो स्टेज आ जाता है जब आप पब्लिशर के पास नहीं जाते, पब्लिशर आपके पास आता है और बोलता है जॉली अंकल इस टॉपिक पे किताब लिख दो। तो आई एम श्योर आपने वो स्टेज अचीव कर ही ली होगी और उसके आगे भी कई स्टेजेस अचीव करी होंगी, जो कि बहुत सारे हमारे ऐसे यंग ऑथर्स का सपना होता है। वो आपने अपने सपने को साकार किया अपनी जिंदगी में, और आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो, कार्गो का बिजनेस आप पिछले 50 साल से कर रहे हो, मार्केट में वन ऑफ द मार्केट लीडर हो। मैं अमन वीर जी को भी जानता हूँ, अमन वीर जी बहुत इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं कार्गो फील्ड में। आपका ये झुकाव राइटिंग में कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा आप प्लीज हम सबको बताइए। और जो लोग हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, प्लीज हमारे इस इंटरव्यू को आप शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। ये जॉली अंकल का इंटरव्यू घर घर तक पहुंचना चाहिए। जॉली अंकल, ओवर टू यू। जहां तक राइटिंग की, बुक्स की, इन सब चीज़ों की बात है, तो मैं फ्रैंकली पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में, प्रिंट में, रेडियो टीवी में भी कई बार मैं बता चुका हूं कि जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि राइटर बनूंगा। और राइटर बनना एक बात है, अभी चलो शौक के लिए कोई कहानी लिख दी या कविता लिख दी, किसी को मोटिवेट करना, किसी की जिंदगी में पूरा बदलाव लाना, जो जिंदगी से बिल्कुल निराश हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि जिंदगी खत्म हो चुकी है, उनको वापस फिर से खड़ा करना, ये मेरी लाइफ का एम है। तो ये एम एक दिन में नहीं बना। एक्चुअली मेरे साथ कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी डॉक्टर्स ने मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो कर दी, काफी टाइम मुझे बेड पे रहना पड़ता था। तो मुझे शौक घूमने फिरने का था, पार्टियों में जाने का था, फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन वो सारी चीजें खत्म हो गई, ड्राइविंग बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। तो ऐसे हालात में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो ऑलमोस्ट सारा दिन बेड पे बैठना, कभी अखबार पढ़ लेनी, कभी रख देनी, फिर थोड़ी देर बाद उठा लेनी। टीवी देखना, तो टीवी में मुझे शुरू से कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, मैंने कभी कोई मूवी नहीं देखी, मैंने आज तक कभी कोई सीरियल नहीं देखा, तो उधर भी मेरा ध्यान रुझान नहीं था। तो मिसेस उन दिनों में थी, अभी तो नहीं रही वो, तो उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो वो बहुत सारी मैगजीन, बुक्स, न्यूज़पेपर पढ़ती थी। तो उनके साथ जब सारा दिन घर में रहना, तो काफी कुछ थोड़ा थोड़ा करते मुझे भी पढ़ने का रुझान हुआ। जब कुछ लोगों के फोटो देखे, आर्टिकल देखे, पढ़े, तो मन में आया कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं, इन लोगों की फोटो यहाँ छप सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। वाह। तो मैंने एक बार एक कोर्स किया था माइंड कंट्रोल का। हमारी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में हमारा माइंड चलाता है। ना ही कोई दूसरा आदमी हमें दुखी कर सकता है, ना ही सुखी कर सकता है, ना हमें वो खुश कर सकता है, जब तक कि हम अपनी जिंदगी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते।
अगर हम अपना रिमोट अपने हाथ में रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। वंडरफुल। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की कि चलो कुछ छोटे छोटे कॉलम लिखता हूं, जो भी कोई करंट न्यूज होती थी उससे रिलेटेड, या कभी उन दिनों में स्ट्राइक्स वगैरह बहुत होती थी, लोगों को परेशानी होती थी, किसी की फ्लाइट मिस हो गई तो उसको लेके कहानी लिखनी शुरू की। तो कभी छपती थी कभी नहीं छपती थी। शुरू शुरू में हमारे यहाँ इंडिया में राइटर्स की जो वैल्यू है वो आप सभी को पता है, हमारे सुनने वाले और पाठकों को भी पता है कि राइटर्स को कितनी यहाँ पे मान सम्मान बहुत मिलता है। अवार्ड्स आपने जैसे कहा बहुत, मतलब कोई गिनती नहीं है। लेकिन आज भी अगर किसी को कह दो कि आप क्या करते हो, जी मैं राइटर हूँ, अच्छा अच्छा वो तो ठीक है, क्या लिखते हो, मैं कह जी मैं बुक्स लिखता हूँ। अच्छा काम क्या करते हो, मीन्स कि भी ये मोटिवेशनल बुक्स लिखना या किसी को गाइड करना, किसी की लाइफ को टोटली बदलना, ये वो काम नहीं समझते कि ये कोई काम है। दूसरी तरफ हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट मशीनरी चाहती है कि अच्छे राइटर सामने आए, अच्छी बुक सामने आए, ताकि नई जनरेशन को एक सही डायरेक्शन मिल सके। लेकिन राइटर्स की आज क्या मार्केट में हालत है या सोसाइटी में उनको कितनी कदर की जाती है, बहुत अफसोस होता है। वो बात अलग है कि जब आप एक अलग लेवल अचीव कर लेते हो, आपका नाम बन जाता है, आपका ब्रांड बन जाता है, तो वो बात आपकी ठीक है कि फिर हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर पब्लिशर ही हमें कहते हैं जी हमें इस टॉपिक पे किताब लिख दो, तो वो क्या बात है। और आई थिंक जी वो तो आपने अचीव कर ही लिया है। आज ये लाइव इंटरव्यू जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है आप इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग हमारे पास कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर से भी जुड़े हुए हैं इस टाइम। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस इंटरव्यू को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। जॉली अंकल का ये इंटरव्यू एक इंस्पिरेशन है, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है और इनका ये इंटरव्यू सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि लाइफ में घबरा करके गिव अप कर दें, वो ये इंटरव्यू जरूर देखें। और मेरी तो दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जॉली अंकल को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जाए। जॉली अंकल को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए। मैं ये पब्लिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जॉली अंकल के बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और जॉली अंकल ने जो जो चीजें अपनी लाइफ में करी हैं वो दिल के साथ करी हैं और एक एम रखा है लाइफ में कि कभी भी अपने उस एम से हटेंगे नहीं। और वो हमें भी यही सिखाते हैं, उन्होंने मुझे भी हमेशा यही सिखाया है और ये जितना भी उन्होंने मुझे सिखाया है मैंने पूरी कोशिश करी है उसको अप्लाई करने की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई गवर्नमेंट इंडिविजुअल ये लाइव देख रहा है, कि जॉली अंकल को वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलना चाहिए। अगर आप व्यूअर्स जितने लोग जॉली अंकल को जानते हैं, अगर आप भी ये चाहते हैं कि उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाए क्योंकि वो डिजर्विंग है, वो हाईली डिजर्विंग है। उन्होंने ना सिर्फ सिख कम्युनिटी का नाम रोशन किया बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम देश देश तक पहुंचाया अपनी कलम से। तो आप सभी इस इंटरव्यू को शेयर करो, कमेंट करो कि स्ट्रांगली रिकमेंड। जॉली अंकल, आपने अपने बारे में बताया, आपको भी एक अवार्ड भी मिला है रिसेंटली, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टार 2020 का अवार्ड मिला है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, वो किताबों की बात अभी हमारी चल रही थी एक्चुअली। जी तो जी पहली किताब मैंने लिखी थी फिर हंसते हंसते जीना सीखो, क्योंकि उस टाइम मैं स्ट्रेस और तनाव के दौर में गुजर रहा था। तो वो किताब पीकॉक बुक्स वालों ने बनाई थी। उस टाइम तक प्रिंट मीडिया की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मार्केट में नाम बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका था। पाठक और पब्लिशर सभी लोग तकरीबन जॉली अंकल को जानते थे, चाहे वो मुझे मिले हैं या नहीं मिले, लेकिन बाय नेम जॉली अंकल को जरूर जानते थे। तो पहले दिन से मुझे खैर किसी भी किताब के लिए दिक्कत नहीं आई। उसके बाद फिर उन दिनों में स्टोरी बुक्स पढ़ने का बहुत ट्रेंड होता था। अब मेरी बहुत सारी बुक्स स्टोरी टेल लाइव पे भी अवेलेबल हैं। जो लोग पढ़ने का टाइम नहीं जिनके पास, वो ऑडियो बुक सुन सकते हैं स्टोरी टेल लाइव के ऊपर। ये स्टोरी टेल एक मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों। जितने व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया है मैं बता देता हूँ, ये जॉली अंकल जो बता रहे हैं आपको, ये मोबाइल एप्लीकेशन है स्टोरी टेल।
आज की डेट में लोगों के पास कई बार पढ़ने का समय नहीं होता या शौक नहीं होता किसी किसी को, तो आप सुन भी सकते हैं ईयरफोन में, जैसे आप गाने सुनते हैं या भजन सुनते हैं, आप स्टोरीज भी सुन सकते हैं। और जॉली अंकल अपनी स्टोरीज के लिए फेमस है। जॉली अंकल, आगे बढ़ते हैं। आपको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टार 2020। ये अवार्ड आपको किस लिए मिला है, अभी रिसेंटली जो आपको मिला है, और ये आपके लिए खास क्यों है, इसके बारे में कुछ प्लीज कुछ बताइए। ये इंटरनेशनल अवार्ड ये है, मैं दिखाना भी चाहूंगा अपने सभी दोस्तों को। वाओ, फैंटास्टिक, अमेजिंग सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टार 2020 का उन्होंने दिया है, जो पिछले 2 ढाई महीने 3 महीने में मैंने अपने कुछ आर्टिकल्स लिखे न्यूज़पेपर में, कुछ मैंने वीडियोस बनाई, कुछ मैंने लाइव प्रोग्राम्स किए अलग अलग चैनल्स के ऊपर। तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए इन्होंने ये अवार्ड जो है मुझे मतलब कि 23 अप्रैल को दिया है। तो इसके लिए मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है उनकी सारी टीम का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस काबिल समझा कि मेरी कलम की बदौलत मुझे ये इतना बड़ा सम्मान दिया उन्होंने। बहुत ही बढ़िया। और आई थिंक आप ये अवार्ड नहीं, आप बहुत सारे अवार्ड डिजर्व करते हैं। और जैसे कि मैंने अभी कहा था कि आपको हम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले, हमारी एक गुजारिश है भारत सरकार से। बहुत सारे लोग एक्चुअली में आपके लिए बहुत पॉजिटिव कमेंट लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं। सो वी आर थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स जो जॉली अंकल के इस लाइव को लाइक कर रहे हैं। और जॉली अंकल का एक बहुत ही बढ़िया शानदार यूट्यूब चैनल है जिस पे रेगुलर मोटिवेशनल वीडियोस, स्टोरी टेलिंग वीडियोस, ग्राफोलॉजी वीडियोस और अलग अलग टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपने वो जॉली अंकल का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर दीजिए। बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं, सिंपल लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाते हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। अभी अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, टाइप करके कमेंट में डाल दीजिए कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया, हमें पता लग जाएगा आपने सब्सक्राइब कर लिया। तो जॉली अंकल, आगे बढ़ते हैं। प्लीज आप बताइए कि ये आप लोगों के सिग्नेचर बदल के उनका माइंडसेट बदल देते हैं, तो ये साइंस ग्राफोलॉजी की आपकी ग्राफोलॉजी की जर्नी कैसे शुरू हुई, आप ग्राफोलॉजिस्ट कैसे बने और किस तरह से आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं अपने इस आर्ट और साइंस से? ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने एक माइंड कंट्रोल का कोर्स किया था, वो एक बेसिक कोर्स था। फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड ये एडवांस कोर्स था ग्राफोलॉजी का, तो वो मैंने फिर एक इसमें भी बेसिक किया पहले, फिर और इसमें बाद में मैंने एडवांस कोर्स किया। ये 90s से पहले की बात है। तो उसी चीज़ ने मुझे भी हेल्प की, जिस वजह से मैं वापस अपनी ज़िंदगी में रिवाइव करके और फिर ठीक से सरवाइव कर पाया और अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर पाया। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है तकरीबन 5.5 साल तक, 5 से 5.5 साल की एज तक 80% 85% जो है वो डेवलप हो जाता है। तो हमारे इंडिया में, खास तौर से हमारे नॉर्थ इंडिया में, बच्चों को सिर्फ 2 ही चीजें हम सिखाते हैं। एक तो डर कि अगर बच्चा कोई शरारत कर रहा है, कुछ है, पुलिस आ जाएगी, वो बाबा आ जाएगा, गब्बर सिंह आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ इस तरह का कह के बच्चे को हम डराते रहते हैं। और दूसरा, नेगेटिविटी हम बहुत ज्यादा भरते हैं बच्चों के दिमाग में। वो कोई भी काम करने लगता है तो वो हम पहले कह देंगे ये तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो इसको। सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता है, नहीं सीढ़ियां मत चढ़ो। बाहर जाने की कोशिश करता है, पार्क में जाना है, साइकिल चलानी है, नहीं पापा आएंगे वो सिखाएंगे फिर चलाना। तो ये नेगेटिविटी की इतनी लेयर्स और फियर की इतनी लेयर्स हमारे दिमाग में भर जाती हैं, जम जाती हैं बुरी तरह, कि जब हम बड़े होते हैं 18-19 साल में, जब हमें डिसीजन लेने की जरूरत होती है, तो सबसे पहले तो देखते ही किसी काम को हमें लगता है कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। करेक्ट। क्योंकि हमारा माइंड सेट, उसकी प्रोग्रामिंग उस तरह से हो चुकी है। अब हमारा फोन है, हमारा कंप्यूटर है, हर 15-20 दिन, महीने में कोई ना कोई इसके अपडेट्स आते रहते हैं।
तो जब तक अपडेट करते रहें तो वो डिवाइसेस हमारी बहुत अच्छे से काम करती हैं और हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलती है और हम इजीली अपने काम सारे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर उनको अपग्रेड ना किया जाए तो फिर आप अंदाजा लगाओ, चाहे आपका फोन 50,000 रुपए का है, वो 15 दिन में 10 दिन में बेकार हो जाएगा। अब हमारा दिमाग जो पूरी हमारी जिंदगी चला रहा है, पहले दिन से जब हमारा जन्म हुआ और आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग हमारी लाइफ को मैनेज कर रहा है, उसको हमने कितनी बार अपग्रेड किया है। हम लोग सोचते भी नहीं इस चीज को कि इसको, क्योंकि बच्चों को भी नहीं पता, पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं है, तो हमने कभी कोशिश नहीं की कि इसको भी अपग्रेड किया जाए। दूसरी चीज, जो अनवांटेड फाइल्स हैं उसको किस तरह से हटाया जाए। अब अगर फोन में या कंप्यूटर में 500 फाइल्स हैं, अगर उसमें 1% 2% करप्टेड फाइल्स हैं तो वो सारी 500 फाइलों को वो डैमेज कर सकती हैं। तो हम अपनी जो ये माइंड का सॉफ्टवेयर है इसके बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते। तो अब जैसे साइन की बात कही, साइन का बेसिकली कोई पर्पस नहीं है। साइन जैसे एक मीडियम है, क्योंकि हमारी फिंगर्स को नहीं पता कि हमारा नाम क्या है या हमने क्या लिखना है। मैंने अगर शहरी साहब लिखना है तो मेरी उंगलियों को तो नहीं पता ना कि भी शहरी साहब कैसे लिखना है, और ना मेरे पेन को पेंसिल को पता है कि ये कैसे बनाना है, मैंने एस कैसे बनाना है, एच कैसे बनाना है, तो उनको तो नहीं आइडिया। तो वो सारे सिग्नल हमें दिमाग से मिलते हैं। तो जब हम साइन करते हैं उसमें हम एक एक चीज, एक एक डॉट को बड़ी माइन्यूटली, मैं कहूँगा क्रिटिकली हम उसे एनालाइज करते हैं कि कौन सा डॉट कहाँ पे लगा है, कहाँ पे लगना चाहिए था, किस लाइन का, किस डॉट का कितना प्रेशर हम डाल रहे हैं, उसका स्लांट कैसे रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है। तो इसके ऊपर मैंने एक बुक भी लिखी थी कुछ टाइम पहले, वो मैं दिखा देता हूँ। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल मैंने इसमें शेयर की थी। ये बुक द बुक लाइन वालों ने बनाई है दिल्ली में, और बहुत ही पॉपुलर बुक है इंडिया में, ये हिंदी में पहली किताब है। तो इसमें मैंने बेसिक सारी चीजें बताई हैं। कोई भी आदमी अपने घर में बैठ के सारी चीजें इसकी समझ सकता है कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए, पेन पकड़ते टाइम कितना उस पर सिग्नेचर करते टाइम प्रेशर डालना चाहिए, उसका एंगल कितना रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिंदगी जहां से शुरू करते हैं 25 साल 30 साल बाद भी उनकी लाइफ वहीं की वहीं धीरे 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 चलते हुए बस वो टाइम पास होती रहती है, उनकी सोच उससे आगे बढ़ती नहीं है। एक मैं कई बार एग्जांपल शेयर करता हूं, वो मेरे पड़ोस में उनको उनके बेटे को गूगल में जॉब मिल गई, बहुत कई लाख का पैकेज दिया उन्होंने, वहां पे यूएसए में घर वगैरह ऑफर किया, गाड़ी दी, सब कुछ। तो मुझे पता लगा, मैं कहा चलो मैं भी मुबारकबाद दे देता हूँ। तो मैं मुबारकबाद देने चला गया उनके घर। तो भी इतनी बड़ी कंपनी, वर्ल्ड की सबसे वन, हर आदमी का ड्रीम होता है गूगल में जॉब मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो उसके पेरेंट्स कहते भाई साहब वो तो सब ठीक है, थोड़ी मेहनत और करता तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, अच्छा होता। तो मतलब कि लोगों की सोच जो है आज भी वो माइंडसेट वही बना है कि नहीं सरकारी नौकरी सेफ है, बस ये गूगल वगैरह तो पता नहीं आ जाए कल बंद हो जाएगी, कैसे होगा। तो ये माइंडसेट जो है ना बदलने की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, माइंडसेट, माइंड पैटर्न। जॉली अंकल हम सबको ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस को रेगुलरली अपग्रेड कर रहे हैं, मोबाइल स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाके, iOS पे जाके, तो अपने माइंड को क्यों नहीं कर रहे। ये कितना इम्पोर्टेंट मैसेज उन्होंने अभी इस इंटरव्यू में सोसाइटी के लिए दिया है। और सेकेंडली वो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि डीक्लटरिंग कीजिए अपने थॉट्स की, अच्छा सोचिए, अच्छा पहनिए और अच्छी बातें करिए।
ये सिंपल सिंपल बातें जॉली अंकल जो बताते हैं ये बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। ये मेरे लिए तो बहुत हमेशा एक रामबाण की तरह मैं मेरे लिए काम करती हैं। जब भी मुझे कोई बात समझाते हैं, फॉर दैट मैटर ये किसी को भी समझाते हैं, इनकी सिंपल बताने की जो स्टाइल है वो सिंपल बातों से ही इतनी इफेक्टिवनेस क्रिएट होती है कि लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, लोगों की सोचने की जो शक्ति है उस पर प्रभाव पड़ता है। और आज जॉली अंकल जिस जगह पहुंचे हैं वो इसी वजह से पहुंचे हैं। तो जॉली अंकल आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई माइंडसेट के ऊपर, ग्राफोलॉजी के ऊपर आपने बताया कि ग्राफोलॉजी कैसे वर्क करती है, कैसे आपकी ये बुक ग्राफोलॉजी जो कि द बुक लाइन के द्वारा पब्लिश की गई है ये अवेलेबल है। और कोई भी जाके ग्राफोलॉजी की साइंस समझना चाहता है, जॉली अंकल की अलग अलग किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। ग्राफोलॉजी किताब भी अवेलेबल है। अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ग्राफोलॉजी के ऊपर इंक्रीज करना चाहते हैं, इस किताब को जो जॉली अंकल ने अभी हमें थोड़ी देर पहले दिखाई स्क्रीन के ऊपर, इसको आप जा करके खरीदिए, जरूर पीजिए, जरूर पढ़िए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक मैकडोनल्ड का मील आप एक हफ्ते के लिए या एक दिन के लिए मिस कर दीजिए और अपनी वो मैकडोनल्ड की मील की इन्वेस्टमेंट जॉली अंकल की किताब पे कर दीजिए। मैं आपसे वायदा करता हूं, आपने पूरे साल में जितना मील खा के न्यूट्रिशन गेन किया होगा, आप उससे कहीं ज्यादा नॉलेज एक किताब जॉली अंकल की पढ़ के गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इनकी किताबें पढ़ी हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ये वर्ल्ड की या कह लीजिए मोटिवेशन की डिफिकल्ट बातें जो हैं आसानी से सिंपल शब्दों में कन्वे कर देते हैं, लोगों को समझ आ जाती है और फिर लोग जॉली अंकल को कभी नहीं भूलते। जॉली अंकल आप हमें ये बताइए कि अब कोरोना वायरस का टाइम है, क्वारंटीन हुए पड़े हैं लोग, परेशान हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है। मैं जी आपका ध्यान दिलवा रहा हूं, ज्यादा परसेंटेज यानी कि मेजॉरिटी जो लोग सिर्फ खाने के अलावा, टेलीविजन नेटफ्लिक्स देखने के अलावा और या फिर सोने के अलावा चौथा कोई काम शायद नहीं कर रहे हैं, इस तरह के लोग ज्यादा जल्दी डिप्रेशन में आ रहे हैं, माइंडसेट के ऊपर बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं इनको अगर अपना माइंडसेट बदलना हो, एक सक्सेस माइंडसेट क्रिएट करना हो, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है हम सबको कि अपने माइंडसेट पे हम काम करें, अपनी बिजनेस प्लानिंग करें, स्ट्रेटेजाइज करें अपने बारे में जो चीजें हम सोचते हैं। जैसे आपने बोला डीक्लटरिंग करें माइंड को, तो हाउ टू ब्रिंग हैप्पीनेस और क्रिएट सक्सेस माइंडसेट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड ऑफ कोविड-19। देखो, सबसे पहले तो चाहे अब ये कोरोना की आपने बात की या इससे पहले भी कई बार प्रॉब्लम आती रही अलग अलग, तो हमें जो सच्चाई है, हकीकत है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है। हमें डर किस चीज से लगता है? मैक्सिमम क्या होगा, कोरोना से क्या क्यों डरते हैं लोग? कि हम मर जाएंगे। अगर कोरोना नहीं होता तो क्या सारी दुनिया जो आज तक आई है वो सारे जिंदा हैं? भगवान से लेके आम इंसान तक आज तक जो भी इस दुनिया में आया है, कोई भी जीव आया है, हर किसी को एक ना एक दिन जाना है। बहाना कोई भी बन जाता है। अब ठीक है कि 2-2.5 इंडिया में मतलब कि केसेस डेथ के हो गए हैं, लेकिन जब कोरोना नहीं था तो इससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में लोग रोज मर रहे थे। तो ये जो नेगेटिविटी है, अब मैं मॉर्निंग में हार्डली 2 से 3 मिनट सिर्फ टीवी देखता हूं एक बार, और रात को सोने से पहले 10-15 मिनट पहले 1 या 2 मिनट के लिए मैं देखता हूं। क्योंकि जितनी भी मैक्सिमम बातें हैं वो पिछले 2-2.5 महीने में हम सब कुछ समझ चुके हैं, सब कुछ जान चुके हैं। हमें जरूरत है अपने माइंड को बैलेंस करने की। अगर हम अपने माइंड को एक बार बैलेंस करना सीख लेते हैं तो उसके साथ हम अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, बच्चों को, सबको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा सकते हैं। लेकिन अगर घर का हेड ही अपसेट हो गया, वही डिप्रेशन में जा रहा है या वही सुस्त पड़ा है सारा दिन बेड पे, नहाने का कोई टाइम नहीं, रात को 2-3 बजे तक जाग रहे हैं, सवेरे 11 बजे तक उठने का पता नहीं, तो उससे क्या होगा? हम ये आज टाइम वो है कि एक एक पल को यूज करने की जरूरत है। जिंदगी में इससे अच्छा मौका कभी दोबारा नहीं मिलेगा। जो कुछ हम बचपन से लेके आज तक स्कूल कॉलेज में जो हमारी ख्वाहिशें थी,
जो कुछ हम करना चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे, कोई म्यूजिक, किसी को फोटोग्राफी में, किसी को वीडियो में, जो कुछ भी शौक थे वो आप इस टाइम में पूरे कर सकते हो। जब तक ये प्रॉब्लम खत्म होगी आप हीरो नंबर 1 बन के आ सकते हो। हर हीरो की स्टार्टिंग जो है वो 0 से होती है। आप भी 0 से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। मेरा प्रॉमिस है कि जब तक ये प्रॉब्लम खत्म होगी आप हीरो नंबर 1 बन सकते हो। क्या बात है सर। उस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। माइंड में सबसे पहले क्लैरिटी लेके आओ। जब तक माइंड क्लियर नहीं होगा कि हमें करना क्या है, हमें अगर 15 दिन का, 18 दिन का, 20 दिन का अगर लॉकडाउन हो गया है तो ये थोड़ा हो गया कि अब दुनिया खत्म हो गई। आज हमारे पास बेस्ट टाइम है, वर्ल्ड की ये बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अब मैं अपने घर में बैठा हुआ हूं, अपनी लग्जरी में, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं। और जैसे शहरी साहब बता रहे, मैं तो नहीं देख पा रहा। सभी दोस्तों को मैं थैंक्स करना चाहूंगा जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लेकिन कम से कम 10 कंट्रीज में लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, कल तक हमने यहां से अगर एक चिट्ठी भेजनी होती थी सिंगापुर तो कम से कम 20 दिन 25 दिन लग जाते थे, 25 दिन लग जाते थे। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। हर चीज हर फॉर्म में अवेलेबल है। आप सिर्फ ये देखो, अपने माइंड को क्लियर करो, रियलिटी सामने लेके आओ कि क्लैरिटी जितनी होगी उतनी रियलिटी आपके सामने आएगी। क्या कर सकते हो, अपनी कैपेबिलिटी को समझो। क्या वीकनेस है आपकी, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या कुछ और नया कर सकते हो, अपने लिए क्या कर सकते हो, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो। कम से कम, ज्यादा नहीं तो एक हफ्ते में 1 घंटा मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोसाइटी के लिए कोई एक नेक काम करना शुरू कर दो। आपका माइंडसेट हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। कभी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आएगा ही नहीं। दूसरी चीज, कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म। सरकार ये नहीं कर रही, सरकार ने ये कर दिया, सरकार को ऐसा करना चाहिए था। वो मेरा एक जानने वाला है, वो कहता है अगर मुझे प्रधानमंत्री बना देना तो मैं 2 दिन में सारा देश बदल के रख दूंगा। वो कहती सवेरे से पजामा उल्टा पहना है, पहले पजामा सीधा कर लो, फिर उसके बाद देश को कंप्लेंट तो बहुत जल्दी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो हमें अपनी हकीकत को समझना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, उसको समझ के उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी टिप्स आपने जॉली अंकल हम सबको बताई हैं। और आई थिंक बहुत वैल्यू एडिशन जॉली अंकल ने अपनी बातों से किया, हंसाया भी हमें। ये इनकी खासियत है, ये बात करते करते आपको सीरियस बात करते करते कब ह्यूमर पे ले जाएंगे और कब आपको उस पहाड़ की चोटी पे जाके बोलेंगे अब हंसो, और आपको हंसना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये कला ह्यूमर की जॉली अंकल की, हम इसके माहिर के नहीं कहना चाहिए मुझे, हम इसके एक्चुअली कायल हैं। हम इस कला के कायल हैं कि ये सबको हंसाते हैं अपने ह्यूमर से, अपनी बातों से, और अपनी जो भी बातें होती है वो सीरियसली कन्वे भी कर देते हैं। और सीरियसली कन्वे करने के साथ साथ लोगों को इंस्पिरेशन भी देते हैं, लोगों को गाइड भी करते हैं, और जिससे कि बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं जॉली अंकल की बुक्स पढ़ के, जॉली अंकल की बातों को सुन के। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप टाइप कीजिए। तब तक हम जॉली अंकल से उनका फाइनल मैसेज लेते हैं कम्युनिटी के लिए, MS टॉक्स कम्युनिटी के लिए। जॉली अंकल, आपने MS टॉक्स को कहते हैं कि सहारा दिया है शुरू से, आपने हमेशा सपोर्ट करा है। MS टॉक्स कम्युनिटी के लिए आपका क्या मैसेज है, और आप क्यों रिकमेंड करते हैं MS टॉक्स को, जैसे कि आप हमेशा आशीर्वाद देते हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी। तो आपका क्या कहना है MS टॉक्स कम्युनिटी के लिए और हमारा जो काम है उसके लिए, आपके ब्लेसिंग्स चाहिए। मैं बहुत लकी हूं कि मैं पहले दिन से MS टॉक के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाया हूं मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैंने इस यंग टीम से बहुत कुछ सीखा है।
क्योंकि स्पेशली बीइंग ए राइटर जब किताबें लिखनी होती है तो नए नए थॉट्स कई बार मैं एक्सपीरियंस इनके सेशन में शेयर भी करता हूँ और एंजॉय भी करते हैं हम सारे जब इकट्ठे बैठते हैं। तो MS टॉक के लिए मैं 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगा कि मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं। मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं, जिंदगी में अभी इम्तिहान बहुत हैं। मत करो गिला उसका जो मिला नहीं, मत करो गिला उसका जो मिला नहीं, इस दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऑसम। स्टे इन ग्रेटिट्यूड एंड स्टे हैप्पी। जॉली अंकल का ये मैसेज हम सभी के लिए, MS टॉक्स कम्युनिटी के लिए, कि आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, रिव्यू योर थॉट्स, declutter your thoughts, work on your mindset, upgrade your mindset like you upgrade your mobile applications, do best for the society। कोई एक अच्छा काम जो आप सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। गवर्नमेंट को कंप्लेंट करना बंद कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखिए, बड़ा सोचिए, अपने थॉट में क्लैरिटी लेके आइए, अपनी वीकनेस पे काम कीजिए। इससे बेहतर समय, जैसे जॉली अंकल ने बोला, वो हो ही नहीं सकता कि आप अगर किताब लिखना चाह रहे हैं तो किताब लिखिए, आप कोई पोएट की बुक लिखना चाह रहे हैं, पोएम्स की बुक लिखना चाह रहे हैं, वो लिखिए, आप कहानियों की राइटिंग करना चाह रहे हैं वो कीजिए, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं वो कीजिए। आपके मन में जो भी आ रहा है इस समय का सही उपयोग कीजिए, ताकि वो आपके पर्सनालिटी को हेल्प करे, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। और इसी के साथ हम जॉली अंकल का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। जॉली अंकल, आपसे बात करने का मन तो बहुत है, लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक अभी तक का सबसे बेस्ट इंटरव्यू कह सकते हैं। हंसते खेलते पता भी नहीं लगा कब ये समय बीत गया आपके साथ। और ये सबसे ज़्यादा एक खास बात है, जितना बड़ा पेड़ होता है उतना ही फल भी उसका मीठा होता है, उतना ही झुका रहता है। अगर इसका लाइव एग्जाम्पल आपने देखना है तो वो आपकी स्क्रीन पे है। मुझे मत देखिए, जॉली अंकल को देखिए। जॉली अंकल वो शख्सियत है जो इसको जी रहे हैं इस टाइम, और ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप में से कोई भी कामयाब है या कामयाबी की ऊंचाइयों को छू चुका है। ये क्वालिटीज जो जॉली अंकल में है वो हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ में, और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, उनकी किताबों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और रियल में सही मायने में तो उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो जॉली अंकल, आप जैसे कि आपने बहुत सारी बातें बताई माइंडसेट के बारे में, किताबों के बारे में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे व्यूअर से, आप बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्विकली आपसे हम एक क्वेश्चन लें ताकि हम उस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। ओके, किसी ने कुछ सवाल पूछा है कि किस तरह से हम लोग, ओके जॉली अंकल, आपके लिए एक सवाल आ गया है। व्हेन यू एंड जॉली अंकल स्टार्टेड योर करियर, जॉली अंकल, ये सवाल ये है कि आपने अपना करियर शुरुआत कैसे करा, और आपने ये रियलाइज कब करा कि ग्रेजुएशन की डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के स्किल। तो ये आपने कब रियलाइज करा? ये सवाल हमारे किसी व्यूअर ने पूछा। मैंने अपना कैरियर एज ए स्टेनोग्राफर शुरू किया था। ये जो उषा फैन स्विंग मशीन्स बनते हैं, कनॉट प्लेस में इनका ऑफिस होता था। तो उन दिनों में, ये 70s की बात है, तो सबसे इजी जॉब लेने का तरीका यही होता था कि पढ़ाई पूरी करते ही अगर टाइप शॉर्ट एंड अच्छे से सीख लो तो जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती थी। तो उन दिनों में स्टेनोग्राफर की काफ़ी डिमांड होती थी, तो लकली मुझे वहाँ पे जॉब मिली। और बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे मिलने वाले स्पेशली आते थे, क्योंकि 70s में कनॉट प्लेस अभी अच्छे से डेवलप हो रहा था, नई नई बिल्डिंग ऊंची ऊंची फर्स्ट टाइम मल्टी स्टोरी बननी शुरू हुई थी। तो मेरा ऑफिस और मेरे मिलने के लिए वहाँ पे इसलिए आते थे। तो उसके बाद फिर मैंने कस्टम का एग्ज़ाम दिया। ये जो CHA होता है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंडक्ट करती है। वो एग्ज़ाम क्लियर किया तो उसके बाद फिर हमें कस्टम का लाइसेंस मिला एज ए कंसल्टेंट।
और इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियरेंस का हमें मतलब कि वो अथॉरिटी मिलती है। और हम फिर तब भी मैंने मैक्सिमम गवर्नमेंट यूनिट्स का काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का काम, बजट प्रेस का था, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक की सारी क्लियरेंस तकरीबन 14-15 साल तक हमारे पास थी। तो ये सारे टाइम्स ऑफ इंडिया की सारी जितनी ये कंप्यूटराइज मशीनरी लगी है प्रिंटिंग प्रेस की, वो सारी मैंने क्लियर की हुई है। तो ये इस तरह धीरे धीरे कैरियर करते फिर दिल्ली और बॉम्बे दोनों जगह से तकरीबन 45 साल से हमारे ऑफिस हैं जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया जॉली अंकल, आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दिया। एक सवाल और किसी ने पूछा है कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी पे कुछ लिखना चाहते हैं जो कि आराम से लोग समझ जाएं, तो किस तरह से ये किताब लिखी जाए जो कि मासेस परचेज करे। इनका फोकस ये है कि मैं जो किताब लिखूं वो आराम से पढ़ी जाए, पढ़ने में आसान हो और उसको मासेस खरीदे। उसके लिए आप क्या टिप्स दे सकते हैं? किताब देखो हमेशा जितनी सिंपल लिखी जाए, और सबसे पहली चीज ये है कि हम जब किताब लिख रहे हैं तो हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। हमने क्या स्टूडेंट्स के लिए लिखनी है, क्या जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, मिडिल क्लास जो हैं मतलब कि उन लोगों के लिए लिखनी है, बिजनेसमैन है, शॉपकीपर्स हैं, किस तरह के लोगों के लिए लिखनी है उसका हो। और लैंग्वेज जितनी सिंपल होगी उसका फायदा ये होता है। मैंने अपनी कहानियां जब मैं प्रिंट मीडिया के लिए लिखता था, बुक्स में भी बिल्कुल सिंपल वर्ड, सिंपल जितना हो सकता है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ये होता है कि हमारा रीडर्स के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। जब एक रीडर के साथ कनेक्शन हमारा बन जाता है तो हम उसे फिर करेक्ट कर सकते हैं। जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा तो हम उसे करेक्ट नहीं कर सकते। करेक्शन से पहले कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। तो किताब जितनी सिंपल हो, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किताब के बारे में मैं जरूर कहूंगा कि जितना सिंपल, जितने छोटे चैप्टर और जितना इजीली आप कन्वे कर सकते हैं वो कन्वे करने की कोशिश कीजिए, ताकि रीडर्स को पढ़ने में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, कहीं रेफरेंस ना ढूंढने पड़े। उस टाइम में वो फिर किताब छोड़ देते हैं और फर्दर भी वो रिकमेंड नहीं करते, जिससे किताब इजीली पॉपुलर नहीं हो पाती जी। शुक्रिया जॉली अंकल, आपकी बहुत ही एक्सपर्ट टिप्स, एडवाइस, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया किस तरह से किताब लिख करके पब्लिश करके सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। एक बार फिर ऑन बिहाफ ऑफ एमएस टॉक्स, ऑन बिहाफ ऑफ ऑथर शेरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। आपने अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी शेयर करी और ऐसे बहुत सारे पल आए जब हम हंसे भी, आपकी बातों से मोटिवेट भी हुए, आपकी जर्नी से मोटिवेट हुए। और मैं फिर से दरख्वास्त यही करूंगा सभी को कि सभी लोग जॉली अंकल को फेसबुक पे फॉलो कीजिए, सभी लोग जॉली अंकल को यूट्यूब पे, इनके चैनल हैं, बहुत सारी वीडियोस, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं। आई थिंक जॉली अंकल मेरे ख्याल से 400 या 500 वीडियोस हैं। नहीं, 270 के करीब हैं जी। तो देखिए उनको अपना नंबर भी याद है, ये भी इनकी खासियत है, ये ट्रैकिंग इस उम्र में भी अपनी हर चीज की रखते हैं। आप इसमें भी पॉजिटिव देखिए, उनका 270 वीडियोस हैं, जा करके वीडियो देखिए। और ये 270 वीडियोस में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही किफ़ायती कंटेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा जॉली अंकल को आप फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए। एक सबसे अच्छी खासियत जॉली अंकल की है कि ये हमेशा अपने आप को एक्टिव रखते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो दुनिया की या कोई भी समस्या हो हेल्थ की, ये उसको कभी भी जाहिर नहीं होने देते। और हमें ये इनसे सीखना चाहिए, हम सभी को ये सीखना चाहिए, हमें और आपको। जॉली अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल, वेरी पुना। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट एंड कमिंग एंड इंस्पायरिंग अस। थैंक यू शेरी साहब, थैंक यू एमएस टीम, थैंक यू सर।